Assalamu alaikum. Kala sarvi vav tufan vuşmut. Yus Allah Taala sund azab o. Sos nu vav kien sos Allah Taala sund azab. Tike to chu sain kashir mez kum vaka ç gasan. Kashur kemis pet kar men baros. Kemis insanas pet karo baros yet. Uçu to yak bord bar scam ju kashir mez gumut. Meşer confirm pata ki icha gumut icha paziyos mu scam karan kerin Tۄہہِ ہاوو بہٕ ویٖڈیو کمپلیٖٹ ویٖڈیو ہاوو تۄہہِ بہٕ وٕچھِو تُہۍ یہِ ویٖڈیو تُہۍ وٕچھِو سکیم کوٗتاہ بوٚڑ چھُ اوسمُت اگر یہِ واقعی یتھ سکیمس منٛز پھسیو تُہۍ وٕچھِو سکیم کوٗتاہ بوٚڑ چھُ اوسمُت زٕ ویٖڈیو کِلپہٕ چلاو بہٕ تۄہہِ برونٛٹھ تُہۍ وٕچھِو أمِس اِنسانس کۭژاہ فیم مِلے کٔشیٖرِ منٛز أمِس اِنسانس کوٗتاہ عزت مِلیو کٔشیٖرِ منٛز مگر یِمو أمِس عزت دیُت أمۍ گیُنٛد تِمن سۭتۍ واپس تِہنٛزن جذباتن سۭتۍ گیُنٛد أمۍ وٕچھِو تُہۍ ویٖڈیو زٕ ویٖڈیو کِلپہٕ چلاو بہٕ گۄڈٕ وٕچھِو تُہۍ اکھ ویٖڈیو کِلپ پتہٕ وٕچھِو تُہۍ بیاکھ ویٖڈیو کِلپ ییٚمِس پنٕنۍ راے آسہِ دِنۍ سُہ وَنہِ کومنٹ سیکشنس منٛز بیٚیہِ کرِ ویٖڈیو ضروٗری شِیر تاکہِ یِتھۍ ویٖڈیو گژھن ضروٗری شِیر کرٕنۍ تاکہِ آیندٕ ییٚمِس تہِ کانٛہہ غلطی آسہِ کرٕنۍ سُہ آسہِ غلطی کرنہٕ برونٛٹھ سونٛچان لہذا پڑھنا مدد کران تمام پور ترجمانی مدد کران چونکہ نوجوان ینگ مین اگر أمس 10 ساس بندی کر یہ کر کم یہ ولی بند کر پچمس چانس من بس یہ کر مگر نمس وارن دربار پن ٹوٗر مے ون 10 ساس 10 ساس بندی کرے میرا صبح کر أمس عنایت میرا صبح دس أمس پنس نیچوِس ٹوٗر KYC اندر وسا مزٕ کِنہٕ نیبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں ڈاکٹر عبدالباری نائک ٹرمینیٹڈ پروفیسر یہ جو آج میں ویڈیو آپ کے سامنے لا رہا ہوں اس کو پلیز آپ جتنا زیادہ ہو سکے شیئر کر لیجئے چاہے آپ FB پہ کریں گے یوٹیوب پہ کریں گے انسٹا پہ کریں گے میں کسی کو سٹرائک نہیں دوں گا نہ میں کسی کو منع کروں گا کہ آپ مت چڑھاؤ آپ فری ہو آپ چڑھا سکتے ہو کیونکہ جو بھی میں کام کرتا ہوں وہ راہ حق کے لیے کرتا ہوں لوگوں کے لیے کرتا ہوں سوسائٹی کو بچانے کے لیے کر رہا ہوں میں پرسنل گینز کے لیے کوئی ویڈیو نہیں بناتا ہوں جیسے آپ لوگوں نے دیکھا وہ کوشر بوائے پارا سے وہ کیا کرتا تھا پرسنل گینز کے لیے بنا تھا اور جب وہ ایکسپوز ہو گیا انفلوئنس ہو جاتے تھے لوگ اس کے بعد اس نے مجھے 2 سٹرائکس دی اور میرا پیج بند ہو گیا اسی لیے ریکویسٹ کرتا ہوں آپ یہ شیئر کر سکتے ہو اس کے بعد آج جو ٹاپک ہے وہ ایکچولی KYC جو سری نگر میں بمنا میں تھا یاور صاحب کا اس کے بارے میں آپ لوگوں کی جو آنکھوں پہ پردہ ہے ان کو میں آج اٹھاؤں گا دسمبر 1 ویک میں میرے پاس ایک بہن آتی ہے وہ کہتی ہے میں جو یہ یاور صاحب ہے KYC سری نگر ان کے ساتھ میں رہ چکی ہوں اور وہ ٹھیک بندے نہیں ہیں تو میں نے اس سے کہا دیکھو میں ایسے ہی آپ کی باتوں پہ بھروسہ نہیں کر سکتا ہوں مجھے لگیں گے 2-4 مہینے ان کو ڈگ آؤٹ کرنے میں تب جا کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کرنا کیا ہے اور اس نے 3 چیزیں کہی اس نے سب سے پہلے یہ کہا کہ میں پولیس ڈپارٹمنٹ کے پاس گئی تھی انہوں نے کیا کیا وہ میں نہیں جانتا ہوں اس کے بعد انہوں نے کہا مالک مکان کے پاس گئی تھی میں نے اس سے کہا کہ یہاں غلط ہوتا ہے اس مالک مکان نے سیدھے اس سے کہا کہ جو بھی وہ کر رہے ہیں مجھے اس سے لینا دینا نہیں مجھے اپنے پیسوں سے مطلب ہے اور ایک چیز اس لڑکی نے کہا میری بہن نے کہا کہ میں اتنی ان سے انفلوئنس ہو گئی تھی میں 1 کنال زمین جو سری نگر میں کروڑوں کی پراپرٹی ہے وہ ان کو دینے کے لیے تیار تھی لیکن جب میں نے ان کا کریکٹر دیکھا جب میں ان کا باقی چیزیں سکیمز دیکھے میں نے پھر ان کو منع کیا کب بہن آپ کب آئے تھے میرے پاس اس دن جو KYC کا مسئلہ تھا آپ ٹھیک ہو ہاں میں ٹھیک ہوں آپ بتائیے جی میں آئی تھی دسمبر کے لاسٹ ایسے 25 کو 26 کو ایسے ہی دن تھے میں آئی تھی لیکن دسمبر کے مہینے میں آپ نے مجھے اس دن کیا بولا KYC جو ہیں یاور ہیں جو اچھا KYC میں ہیں ان کو میں نے وہاں ان کی پکچر سب کے سامنے لائی تھی ان کو میں نے وہاں پر کروایا تھا یہ شیلٹر ہوم وغیرہ کا لیکن مجھے نہیں پتا تھا نا یہ لوگوں کو پبلک کو لوٹتے ہیں مجھے نہیں وہ تب تک پتا تھا یہ کہ میں نے ان کو اس کے فیس پر نہیں جانا چاہیے یہ سیدھا سادہ ہے اس کے میں نے اسی دن منڈے کو وہاں پر انوگریشن ہو گئی تھی ٹیوزڈے کو مجھے ان کا پورا کیونکہ انہوں نے آلریڈی میں نے ان کو 2-3 چوریاں پکڑی تھی تب انہوں نے میرے پیر پکڑے تھے ہمیں معافی دو ہم کیا کیا چوری پکڑی تھی کیا 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 تھا انہوں نے ایک تو وہاں میں نے دیکھا تھا
कहा कि ये जो है ना फंडिंग वगैरह का, जब कोई इनको स्पेशली करता है ना कोई फोन पे कॉल कि हम आप हमें अकाउंट नंबर दो, ये आपस में ना जितने भी लड़के हैं ना झगड़ा करते हैं, आज मेरा नंबर दो अकाउंट नंबर, आज मेरी टर्न है, फिर मुझे वो उससे भी शक हुआ। दूसरे उनको ना जो वहाँ पे बंदे थे उनको ला करके रखते थे, मीडिया के सामने उनको एक्टिव होकर ना रखते थे कि मतलब देखो हम इनके केयर करते थे, अंदर ये कुछ नहीं है। ऑटो में एक दिन में आई थी ना वहाँ से, उसी मुझे पता नहीं ऐसे मन में शक जैसा पड़ा, जिसके ऑटो में आई थी उसी को रिटर्न मैंने वापस किया, चलो भाई वापस चलो। वहाँ से मैंने देखा 4 लड़कियां निकलती वहाँ से गेट से। जब मैंने इनको पूछा, इसके यावर के भाई को पूछा, उसने बोला ना 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 ये मसलियत की। फिर मैंने चीखा चिल्लाया, मैंने बोला लेडीज तो मैं ही हूँ यहाँ पर, मेरी इज्जत के साथ मत खेलो, ये लड़कियां बोलो कौन है, बोले नहीं है। दूसरे दिन भी मैंने इनको एक दिन सुना कि यावर घर जा रहा था, बीच में ही इसने फोन किया कि मैं लड़कियां भेज रहा हूँ वहाँ पर, इनको जो पाने हैंडल। फिर तब भी मैंने चिल्लाया, तब इसके भाई ने बोला ये बूझ हमसायो चिकित पर तुलती शोर। मैंने बोला मैं शोर उठाऊंगी, मैंने आपको दिलाया है यहाँ पे ये शेल्टर होम के लिए जगह। उसके बाद मैंने हमीद बाजान को जो मकान मालिक है उसको, मुझे इनको ना मतलब पहले उसको बोला इनको वॉच रखना, आप दिन में 5-6 बार वहाँ जाया करना, देखना इनकी मूवमेंट वगैरह। फिर जब मैंने इनको सब कुछ वो देखा, क्लियर हो गई मुझे इनकी पिक्चर, उसके बाद मैंने क्या बोला बाजान इनको मांगो पुलिस वेरिफिकेशन। ऑलरेडी इनको अनंतनाग से भी पुलिस ने भगाया था, ये रातों रात अगर इनको कुछ नहीं था चोरी, ये दिन में अपना चेंज मतलब सामान वगैरह लाते, इन्होंने रात के टाइम लाया। थोड़ा नमकार से नुकसान की मैं इनको कुछ नहीं भूल सकता हूँ। फिर मैं गई पुलिस के पास, मैं इनको यहाँ पर ये है ना बेमीना पुलिस स्टेशन इम्तियाज साहब के पास, मैंने इनको वहाँ भी कंप्लेंट की हुई। आए थे मैं उनको फोन कर रही थी, सर क्या हुआ। जब फिर उसने गौर नहीं किया, फिर मैंने भी अवॉइड किया। उसके बाद मैं आपके पास आ गई। ओके। मैंने 6 महीने तक रिसर्च किया, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और मई आज चल रहा है। 6 महीनों की रिसर्च के बाद मुझे बहुत सारी चीजें सामने आ गई। सबसे पहले जो मैंने जो वो शेल्टर होम देखे, उसमें क्या होता है वो पर्सनल यूज के लिए होता है और इतने गलत काम होते हैं आप कभी इमेजिन नहीं कर सकते हो। सेकंड क्या है, जो ऑफलाइन पेमेंट्स आप डोनेट करते हो उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, और इवन अपने पर्सनल अकाउंट्स दिए जाते हैं उनमें आप डिपॉजिट करवाया जाता है पैसा, उसका कोई पता नहीं होता है। उसके बाद जो डे बुक होती है वहां वो भी मेंटेन नहीं है। उसके बाद जो इनमेट्स होते हैं वहां जो यमन इस वनो मत यम तिम बिचार बुजुर्ग लुक तथ मज आसन तथ होमस मज, उनके साथ भी इतना टॉर्चर होता है कि आप कभी इमेजिन नहीं कर सकते। यावर साहब का शेल्टर होम में क्या क्या कांड होते हैं वो पीछे आप देख ही सकते हैं वीडियो में कि कैसे ये पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज करता है। इवन ये मुझे एक दिन सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में मिला, इसने कहा मुझे सेल्फी लेनी। मैंने कहा आप कौन? कहा यावर। मैंने कहा नहीं आप मेरे रडार पे हो, मेरे साथ सेल्फी मत ले लो, ये अपलोड मत करना, ले लो लेकिन अपलोड मत करना क्योंकि रडार पे हो। उसके बाद मैंने उसको मना किया, तभी ये 5 महीने पहले की बात है। उसके बाद वो अभी रिसेंटली मुझे SMHS में मिला, वो लड़ने लगा, कहने लगा आप मेरे पीछे पड़े हो, ये कर रहे हो। मैंने कहा जो रियलिटी होगी वो मैं लोगों के सामने ले आऊंगा। उसने मुझे बहुत सारी ब्लैकमेलिंग के लिए कहा मैं तुम्हें ये करूंगा वो करूंगा। मैं डरने वाला किसी चीज से नहीं, अल्लाह पाक के सिवा मुझे कोई डर नहीं होता है। इवन उसके बाद उसने जब वो मिला उसने कहा वो मेरी वाइफ है, उसके साथ मेरे फोटोग्राफ्स है, वीडियोस है। मैंने उससे कहा सीधे आप निकाहनामा दिखाओ और आपको शेल्टर होम में ये गंदी चीजें करने की जरूरत नहीं थी। उसके बाद उसने बड़ा चिल्लाया, उसने कहा आपको नहीं पता है मेरे पीछे कौन कौन लोग हैं, मेरे पीछे कौन कौन सा बैकअप है। मैंने कहा कोई नहीं। अब आप देख लीजिए ये किन किन लोगों को वहां ले आता है और वो क्या इसके बारे में कहते हैं, लेकिन ये उल्टा क्या कर रहा है। पहला स्पीच आप इनका सुनिए। हम सबको, गवर्नमेंट का ही नहीं, हम सबका, जितनी भी डिफरेंट सेक्ट्स है सोसाइटीज़ के या जितने भी सेक्टर्स है उन सबका सपोर्ट आना चाहिए, सबका सपोर्ट कंसोलिडेट होना चाहिए इनके लिए। एंड दे शुड डू whatever they can do in their capacities, whatever bit they can contribute towards them, towards their well-being, towards their shelter, they should do that. And I believe that they are doing a very well job, a very wonderful job, you know, without any ulterior motives and gains. तो हम सबको आना चाहिए सामने और इस इनिशिएटिव को मजबूत करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, and we should अब देखिए सेकंड चीज जो है ऑफलाइन डोनेशन की। ऑफलाइन डोनेशन जो रमजानों में कलेक्ट हुआ 2.5 मींस 2.5 लाख रुपए एक ही बंदे ने अपनी फैमिली से कलेक्ट करके इस
शेल्टर होम के लिए दिया था यमन मटन खतर ताकि यमन मेल खेन चन तो रोजन जाए। उसके अलावा 2 लाख और आ गए। उस 5 लाख का कोई भी डे बुक में रिकॉर्ड नहीं है। वो ऐसे ही मतलब कहाँ किया गया, क्या किया गया पता नहीं। जब यावर साहब को ये पता चला कि मैं इसके पीछे हूं और इसको डिग आउट करने की कोशिश कर रहा हूं, 20 दिन से वो हर एक वीडियो में कहता है कि आप मेरे पर्सनल अकाउंट में मत डालिए पैसे, आप मेरे जो एनजीओ का अकाउंट है उसी में पैसे डालिए। अकाउंट नंबर दिता कश्मीर कंपनी कत पे करो अगर कह स्कैनर तह जरूरत सन कॉन्टेक्ट नंबर दिता खाली कालन खतर योत अत पे कर कहन ते फंड डोनेट अगर कह अकाउंट नंबर या स्कैनर आ जरूरत अस कर व्हाट्सएप मैसेज अस करो स्कैनर सेंड। बाबर साहब क्या करते हैं, 3 पर्सनल अकाउंट्स है। एक अकाउंट है 49002 जो एक फीमेल के नाम से है, उसमें उसके बाद है और एक 01381 और एक है 5749 जो यावर साहब के नाम पे है। अब इस अकाउंट के बारे में बताऊं, ये मैक्सिमम लोगों को जीमेल भेजता था WYARWER@gmail.com और उसी के जरिए क्या अपना पर्सनल अकाउंट शेयर करता था। अगर आपको यकीन नहीं होता है पीछे स्क्रीन शॉट देखिए, मैंने ये करवाया है अपने टीम मेंबर्स के जरिए ताकि ये उसमें पैसे डालेंगे। और मेरी रिक्वेस्ट है हायर अप से, पुलिस डिपार्टमेंट के चल से, अगर आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए तो ये 3 जो अकाउंट है इनकी डिटेल्स, क्योंकि मेरे पास उतना पावर नहीं है ना मेरे पास उतनी अथॉरिटी है कि मैं उसको डिग आउट करूं। आप इन 3 अकाउंट्स को देख लीजिए कहां से पैसा आया है और किधर गया है, तो आपको दूध का दूध और पानी का पानी निकल जाएगा। उसके अलावा इन्होंने बहुत सारे पॉलिटिशियंस को हमें बाहर निकल के ऐसे लोगों को मदद करने की ज़रूरत है जो ये ऐसा काम करे और आई थिंक वी विल ऑल्सो ट्राई टू हेल्प देम। हमारी दुआ इनके साथ है। बहुत ही अच्छा काम है, बहुत नेक काम है। यूज किया, रिलीजियस स्कॉलर्स को यूज किया। खुदायन हदीस कुदसी फरमान नबी सर में फरमा खुदायन फरमान खैरुन नास दुनिया में जो बेहतरीन इंसान सुई मयन। इवन चंद जर्नलिस्ट्स को और यूट्यूबर्स को वहां लाया ताकि अपनी इमेज को हाई करने के लिए, ताकि लोग और जुड़े और पैसा आए। और इवन ये उन इनमेट्स को यम तिम मत वन मतन शामस ट्रेनिंग दिवन तो क्या वन वीडियोस मज, ये भी मेरे पास एविडेंस है। यम बुजुर्ग लुक अत शेल्टर होमस मज आयन वनो मत वनो इनमेट्स ते, उनको उन शेल्टर होम्स में आपको दिखाने के लिए रखा जाता है 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने। फिर इनको कितना टॉर्चर होता है आप कभी सोच नहीं सकते हो। इनको इवन हाईवेज में रात के अंधेरे में निकाला जाता है, गाड़ी में भरा जाता है, जो इनकी वेन है उसको यूज किया जाता है। वेन अनिमो तथ मज हाईवेस पे सन त्र। अगर मैं तो यकीन सारे को गडनत अगर वो मुश्ताक अहमद लोन, सन ऑफ गुलाम रसूल लोन जो निशात के है, वो आप वीडियो भी देख सकते हैं। उनको इन्होंने रैनावारी में छोड़ा, जो 5 महीने वहां रहे, उसको इतना पीटा, वो आप वीडियो में देख ही सकते हैं। उसके बाद KYCS मज कतिस कालस कतन दोहन थाया गया तक 15 श्रीनगरस मज कि चे क्या नाव? अच्छा मुश्ताक गोख ज मुश्ताक तक पत क्या रख तक े मार दितमुत यह दित KYC वालों कम तत कम KYC वालों तत कुछ मार दिवन चलावन यावरो बे कुछ तमिस तती खत्म निशान बाकी मे बूझ तम रात तुम सन पे चढ़ित तक गाड़ मज त्रा हाईवेस पे बिहारुक लड़की तसा तक सोपोर त्रोमुत तमिस क्या नाव शफी सह कोत नुक नबर वह ये सुनील कोडी हारजा कोडी और वो राजस्थान के थे। उनको 2 महीने पहले इन्होंने हाईवे पे, जो नेशनल हाईवे सोपोर जाता है, उस हाईवे पे 2 महीने रख के छोड़ दिया। उसके बाद मोहम्मद अफजल वानी, असदुल्ला वानी के बेटे हैं ये हैं,
उनको भी उन्होंने ड्रैग आउट किया अपने शेल्टर होम, जो इनका शाल्टोंग में शेल्टर होम है HMT में, उनको निकाला, उनको बाहर फेंका, रात के 3 बजे उसको बाहर निकाला। उसके अलावा बहुत सारे और जो इनमेट्स है या यमन मत मानो तिम टॉर्चर कर पत लगावा नेबर, फिर वो हमें रोड्स पे मिलते हैं। ये पर्सनल गेन्स के लिए एंटरटेनमेंट की मेरी रिक्वेस्ट है। ये जो शेल्टर होम्स है, गवर्नमेंट के पास खुद के शेल्टर होम्स है, जैसे कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में है, बांडीपुरा में है, बारामुल्ला में खुद के शेल्टर होम्स है जो गवर्नमेंट के अंदर है। हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं लोगों को वहां ये मत त्रयुक तत या ये बुजुर्ग लोग थयुक तत, और गवर्नमेंट के ऑनेस्ट ऑफिशियल से रिक्वेस्ट है मेरी, इनको शिफ्ट कीजिए आप अपने गवर्नमेंट शेल्टर होम्स में, ताकि अकाउंटेबिलिटी हो जाए और ये लोग भी सफर ना करे और इनको टॉर्चर भी ना सहना पड़े, ताकि जैसे ये यावर जैसे KYC वाले लोग उनको टॉर्चर ना करे, और ये इन शेल्टर होम्स को अपने पर्सनल एंटरटेनमेंट के लिए एक हब ना बना दे। और लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप डोनेशन करते हो तो सोच समझ के उस बंदे को डोनेट कीजिए जो आपका पैसा मीन्स अगर तो सोचन चु कि मे हजा दी अल्लाह ताला अम सतन नेक अमलन मज करम ये अमल मतलब दर्ज, तो वो आपको गैर अमल में ना हो जाए। क्योंकि अगर ये एंटरटेनमेंट का हब बना, दारू पीने लगे, चरस पीने लगे, बाकी चीजें, और इवन अगर आप इनकी गाड़ियां भी देखोगे, गाड़ी अगर आप देखोगे, गाड़ी इन्होंने लाई है जिसमें 12 जगह पे चालान हुआ है, मींस दे वायलेट ट्रैफिक वायलेशंस भी करते हैं ये हर जगह। कभी रॉन्ग पार्किंग, पोल्यूशन नहीं, बाकी चीजें नहीं। आप इनका धंधा देखिए क्या है। बाकी थैंक यू।